Hello everyone, welcome to Nauset with Jaspreet. Today we have come up with another very important topic of nursing foundations, that is intravenous solutions. So what are intravenous solutions? We will be starting with the definition and one by one we will be discussing different intravenous solutions that are commonly used and to what category does the solution belongs. It will all be discussed in today's video. So to begin with the definition. So these are the solutions that are administered directly into the veins. ये वो solutions होते हैं जो हम directly कहाँ पे administer कर रहे हैं? Veins में. Now what is the purpose? ताकि जो भी solution हमने patient को provide करना है वो directly systemic absorption में जाए. Right? For the rapid absorption and the faster action, we are going for the intravenous solutions. Right? So, what are the types of solutions do we have? We have two main categories of the solutions. अगर हम solutions को broadly categorize करें, तो solutions हमारे पास होते हैं crystalloids number 1 and colloids number 2. So जो crystalloids और colloids हैं ये दो broad categories हैं किसकी? Solutions के types की. And the crystalloids are further divided into isotonic, hypotonic and the hypertonic solutions. ठीक है? तो जो crystalloids हैं वो further isotonic, hypotonic और hypertonic solutions में divided हैं. तो अब हम one by one इन सभी solutions को discuss करेंगे because बहुत सारी बार इन्हीं solutions में से ही direct multiple choice questions पूछे जाते हैं नॉसेट एग्जाम में. So first is isotonic solutions. So isotonic solutions होते क्या हैं? Which have the same osmolarity as that of body fluids. जो osmolarity होती है, osmolality इन solutions की हमारे body fluids के equivalent होती है. कहने का मतलब they will cause no shift. They do not enter the cells and cause fluid shift. फ्लूइड शिफ्ट वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनका ऑस्मोलैरिटी है इट इज सेम टू दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. तो कोई भी ऑस्मोसिस इंड्यूस्ड फ्लूइड इंटरचेंज नहीं होता. सो दे डू नॉट एंटर सेल्स एंड कॉज फ्लूइड शिफ्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डू नॉट कॉज एनी फ्लूइड शिफ्ट आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ व्हाई दे आर नॉट कॉजिंग दैट शिफ्ट? बिकॉज दे हैव द ऑस्मोलैरिटी सेम टू दैट ऑफ बॉडी fluids. Now they do not they increase extracellular fluid volume. Now why extracellular? क्योंकि वो cells के अंदर enter नहीं कर रहे हैं, so they are not going to cause any change in the intracellular fluid volume. They are just going to enhance the extracellular volume. ठीक है? First thing is that इनकी osmolality is equivalent to the body fluids. They will not enter the cells. They will not cause any fluid shift. Number 3, they will enhance the extracellular fluid volume. ठीक है? Very important. Now, what are the different types of isotonic solutions do we have? Number 1 हमारे पास आता है most commonly used solution in the hospitals, normal saline. अब normal saline में भी which normal saline? 0.9% नॉर्मल सलाइन जो होता है वो कौन सा सोल्यूशन है? इट इज अ आइसोटोनिक सोल्यूशन. राइट? अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, इट हैज सोडियम एंड क्लोराइड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ 154 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. राइट? कितनी कॉम्पोजिशन में होता है ये? 154 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. Now this is very important. You need to learn the osmolarity of several IV solutions, and the number 1 is isotonic, 0.9% sodium chloride, and the osmolality is 308 milliosmoles per liter. कितनी होती है? 308. I hope isotonic solution का first example is clear, which is 0.9% sodium chloride. NS. Now moving on to the next.
Points to remember about 0.9% sodium chloride. Very, very important that this is the only solution which we use at the time of blood product administration. ठीक है, used alongside the administration of blood products. क्यों यूज कर रहे हैं हम इनको ब्लड प्रोडक्ट्स के साइड बाय साइड? क्योंकि ये कोई भी शिफ्ट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस लोगे तो इट विल कॉज hemolysis, right? So you have to use only 0.9%, which is a isotonic solution along with the blood product administration, right? Next is dextrose 5% in water. ठीक है, dextrose 5% in water में क्या होता है? वाटर होता है और ग्लूकोज कितना होता है? 50 ग्राम्स पर लीटर्स. ठीक है, पर 1000 ml 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एडेड होता है इसमें. एंड द ऑस्मोलैलिटी इज 252 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, राइट? अब देखो, जो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है उसके बारे में यू हैव टू नो वन थिंग, दैट जब ये सोल्यूशन एडमिनिस्टर होता है ना, तब तो ये आइसोटोनिक होता है. ठीक है, बट जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज होने लग जाती है. एंड जब डेक्सट्रोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इट्स ऑस्मोलैलिटी विल डिक्रीज. ठीक है, सो इट इज टू बी नोटेड दैट डेक्सट्रोज 5% इन वाटर इज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड, राइट? दैट मीन्स जब तक डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, इट इज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट? Next is, it expands the ICF as well as ECF, right? Next is used as an initial rehydrating solution because it is providing more water than sodium. So initial जब patient को rehydrate करना होता है, this is the first fluid that is used, right? It can also cause hyperglycemia, very natural, क्योंकि अगर dextrose वाला solution देंगे, जब dextrose metabolize होगा तो it has a potential to cause हाइपरग्लाइसीमिया. सो यू हैव टू रिमेंबर कि कभी भी इन फ्लूइड्स को रैपिडली रश नहीं करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया. यस. नेक्स्ट इज रिंगर्स लैक्टेट. अब रिंगर लैक्टेट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्टमैन्स सोल्यूशन. क्या होता है ये? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज Hartmann's solution. इसका composition is also very important, that it contains water plus sodium 130 milliequivalents per liter, potassium 4 milliequivalents per liter, calcium 3 milliequivalents per liter, chloride 109 milliequivalents per liter, lactate 28, and the osmolarity becomes 273 milliosmoles per liter, and you should also learn the osmolality of this solution. Now what are the points to be remembered exclusively for Ringer's lactate? Number 1, the other name. ठीक है. Number 2, it is used in the cases of burn. burn में जब rapid fluid resuscitation करना होता है, Ringer lactate is the fluid of choice. And nth number of times this question has come into the examinations. So you must remember the initial fluid for the rehydration in the cases of burn patient is Ringer lactate, right? But there are certain contraindications also. अब contraindication में भी बहुत बार question आया ये वाला कि what are the contraindications? In which conditions are we not supposed to give Ringer lactate? It is lactic acidosis, and second is liver disease, क्योंकि it needs to metabolize lactate. ठीक है, तो ना ही हम इसको लैक्टिक एसिडोसिस के केस में देते हैं, ना ही हम इसको लिवर डिजीज के केस में देते हैं. ठीक है, सो Ringer lactate में to sum up the 3 major points. Number 1, it is also called as Hartmann's solution. Number 2, it is the fluid of choice in the resuscitation of the burn patient. Number 3, it is contraindicated in the lactic acidosis. ठीक है, so ये 3 चीजें you should never forget when you are studying Ringer lactate along with the osmolality. Moving on to next,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, अभी तक हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस. डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? इसमें सोल्यूट इज लेस एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट. ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है? सोल्यूट की मात्रा थोड़ी कम होती है एंड सॉल्वेंट इज रिलेटिवली ग्रेटर, राइट? लोअर ऑस्मोलैलिटी देन द बॉडी फ्लूइड्स. अनलाइक द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिनकी बॉडी फ्लूइड से ऑस्मोलैलिटी मिलती थी, द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैव अ लोअर ऑस्मोलैलिटी. क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इज लेसर. It causes water to move into the cells. अगर ये सेल है तो जब भी कोई सेल हाइपोटोनिक सेल्स में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप्ड होता है तो वाटर जो होता है इट विल मूव इनटू द सेल. अब वाटर जब सेल के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? सेल का स्वेलिंग, सेल क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है. सो इफ एडमिनिस्टर्ड रैपिडली इट कैन लीड टू द सेलुलर एडिमा. ठीक है. क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट करेंगे, जो सेल के आउटर साइड वाला फ्लूइड है इट विल कम इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है. सो इट कैन लीड टू सेलुलर एडिमा इफ रैपिडली एडमिनिस्टर्ड. नेक्स्ट इज 0.45% सोडियम क्लोराइड. जो 0.45% सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम हाफ स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ स्ट्रेंथ. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड. क्योंकि हमने जो आइसोटोनिक पढ़ा था वो 0.9 था एंड इफ वी रिड्यूस 0.9 इट बिकम्स 0.45. अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? द कॉम्पोजिशन इज वाटर, सोडियम. सोडियम कितना? 77 मिलीक्विलेंट्स पर लीटर and the chloride is also 77 milliequivalents per liter and the osmolality is 154 milliosmoles per liter. So अभी तक hypotonic solutions में we have studied the first solution which is 0.45% sodium chloride. इसको और क्या बोलते हैं? इसको half strength sodium chloride भी बोला जाता है क्योंकि इसका concentration is only 0.45%. इसमें वाटर होता है, सोडियम एंड क्लोराइड होता है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ 77 मिलीक्विलेंट्स पर लीटर, जिससे इसकी ऑस्मोलैलिटी बनती है 154 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर. नाउ द नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वी नीड टू नो इज 0.33% सोडियम क्लोराइड. इसको और क्या बोलते हैं? 1/3 नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज अ कॉन्सेंट्रेशन or the strength of 1/3 to that of isotonic saline. 0.9 का it is the 1/3 part. It is 0.33. ठीक है. अब क्या होता है? 0.33 के साथ साथ एक डेक्सट्रोज भी एडेड होता है 5% वाला. So 5% dextrose plus 0.33% sodium chloride is also isotonic जब वो एडमिनिस्टर्ड होता है. लेकिन जब उसका ये डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज हो जाता है तो इट बिकम्स हाइपोटोनिक. ठीक है. इसमें क्या होता है? कॉम्पोजिशन इज सोडियम क्लोराइड 56 मिलीक्विलेंट्स पर लीटर, ग्लूकोज 50 ग्राम्स पर लीटर क्योंकि इसमें कौन सा डेक्सट्रोज है? 5%. ऑस्मोलैलिटी बिकम्स 365 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर if it is 5% dextrose it will have 50 grams per liter of glucose. ये बहुत major point है, we should learn that. So moving on to next 0.225% sodium chloride. इसमें भी dextrose 5% added होता है. जब ये metabolize हो जाता है then it becomes hypotonic. ठीक है. So it is isotonic at the time of administration but later becomes hypotonic जब dextrose का metabolization हो जाता है. Be it 0.33% of sodium chloride, be it 0.225% of sodium chloride.
ये दोनों क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, क्योंकि अगर इसमें डेक्सट्रोज एडिड होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में क्या बात लर्न करनी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इसमें सोल्यूट इज मोर एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी ऑस्मोलैलिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट, बॉडी फ्लूइड्स। मूवमेंट ऑफ वाटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आफ्टर ऑस्मोसिस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में चला जाता है, इसीलिए ये सॉल्यूशंस जो होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एनहांस करते हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 10% में कितना ग्लूकोज होता है, 100 grams per liter. Osmolality is 505 milliosmoles per liter. So, two things you need to learn. कि जब भी इतने हायर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें हमेशा वी शुड प्रेफर द सेंट्रल वीनस एक्सेस। द सेकेंड थिंग इज दैट अगर पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, अगर उनको क्या एडमिनिस्टर कर रहे हो, ब्लड प्रोडक्ट्स, so never go with the hypertonic solutions, always use isotonic solutions, primarily 0.9% of the sodium chloride. This is very important. और कौन सा, डेक्सट्रोज 50% in water is also hypertonic solution. इसमें कितना ग्लूकोज होता है, 500 grams per liters, and it is the fluid of choice to treat the severe hypoglycemia, in which we give dextrose 50%. D50 हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आईवी पुश से देते हैं पेशेंट को अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया है तो। और कौन सा सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक में, वी हैव 3% नॉर्मल सलाइन। 3% नॉर्मल सलाइन इज ऑल्सो अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक। be it D5, D50, D10 in water or the 3% normal saline, ये सारे hypertonic solutions होते हैं, clear? So this was the types of crystalloids. Crystalloids में हमारे पास क्या क्या आते हैं, if we talk to some of the crystalloids, keep that aside, we will be discussing it now. Crystalloids में हमारे पास आते हैं isotonic, hypotonic and the hypertonic solutions. Isotonic में आया जैसे हमारे पास 0.9% of the sodium chloride. Hypotonic में कौन से आए, half strength, 1/3 strength और 1/4 strength of the sodium chloride with dextrose 5%. Hypertonic में हमारे पास आते हैं 5%, 10%, 50%. Sorry, not 5, it's 10%, 50%. जो हमारे पास डेक्सट्रोज होता है वो क्या होता है, इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ टू कम अप विद द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स को प्लाज्मा एक्सपेंडर्स भी बोले जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वेस्कुलर कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। सो दे एनहांस द इंट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डेक्स्ट्रान होता है, इसमें एल्ब्यूमिन होता है एंड इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारे सॉल्यूशंस किस में आते हैं, कोलॉइड्स में। कोलॉइड्स क्या होते हैं, प्लाज्मा एक्सपैंडर्स होते हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोवोलीमिया होता है तब प्लाज्मा एक्सपैंडर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो टू सम अप, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रावेनस फ्लूइड्स. If we talk about the intravenous fluids, they are directly administered into the vein. वेन में हम या तो क्रिस्टलॉइड्स एडमिनिस्टर करते हैं या हम कोलॉइड्स एडमिनिस्टर करते हैं. कोलॉइड्स includes the proteins and are called as the plasma expanders. Isotonic, hypotonic and the hypertonic are the type of other category which includes crystalloids. क्रिस्टलॉइड्स में होते क्या है, वाटर के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है. उनकी टोनिसिटी डिपेंड करती है उनके ऑस्मोलैलिटी पे, विच कैन बी आइसोटोनिक, hypotonic or the hypertonic solution. So this was all about the intravenous fluids. I hope you understood some of the great concepts about this topic using this video. So for more videos, please
Click on the subscribe button and ring the bell icon so that you never miss an update. Stay tuned for the upcoming videos. We have a lot of content for you. Thank you.